Just to test, am I clear? We are clear, right? We can sit here and make the video. Deep and I are sitting and chatting. Okay, this is episode number 18, I guess. We can say 18, right? Okay, thank you. हेलो वेलकम टू चिल पिल एपिसोड 19। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ मेरा भाई, आज इस एपिसोड में मेरा भाई बात करेगा कोई एक भूत एक्सपीरियंस और एक भूत की कहानी जो उसने उसको सुनने में आया था, उसने सुना था। जो हमारे घर में एक मेड काम करती थी, उसने एक कहानी के बारे में बताई थी। तो हाय दीप, हाउ आर यू? Hi, Jeet. Thank you. Firstly, thank you so much for inviting me in one of your episodes. And I've been following your videos and reels for a while, and I really wanted to gate crash. I really wanted to be a part of it. So thank you for inviting me. So aaj ka topic is something I had this story in my mind, and even Jeet knows about this. So I thought, why don't I talk about it? Because in Calcutta, just like Mumbai, there is a lot of challenge. We neighbors, families, we face a lot of challenge finding the perfect domestic help. Because initially, actually, usually this story is pretty common in Mumbai. But even in Kolkata, being from Calcutta, finding a domestic help, a good one, is very challenging. So I'll just set the context for him. yeah, Okay. So ये कहानी ऐसा है कि मेरे घर में हम लोग के घर में एक लड़की काम करती थी। उसने ये कहानी बताई थी कि कैलकाटा में ना हम लोग सब जो साउथ कैलकाटा में रहते हैं ना, बहुत सारे पुराने घर में लोग रहते। एक फैमिली शिफ्ट हुई थी और काफी अच्छा घर था, एक बालकनी था, सब कुछ था। और वहां मेड्स मिलना बहुत मुश्किल है, वो हर जगह है। मुंबई में भी वही सीन है। तो मुश्किल से एक घर में मेड आई थी और उनके साथ क्या होता है वो कहानी इसके बारे में है जो दीप बात करने वाला है। तो ओके जी दीप, आप बताइए आपने क्या सुना था ऑडियंस? yeah. So this story revolves around Mukherjee Parivar. So अचानक से मुखर्जी परिवार हैज बीन स्टेइंग इन साउथ कोलकाता एंड उनका एक काफी लॉयल मेड हुआ करता था. ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सम इशू, दिस लॉयल मेड हैड टू लीव and everything just went helter skelter. And you know, when you don't have a maid, especially someone who's working for quite some time, it definitely gets very, very difficult. You're just not used to getting back to face the reality that you have to do all the work yourself. So this Mukherjee Parivar, the similar story. Their loyal maid left and they were in lookout for a new maid. So they were looking everywhere, they were asking, and they asked a multiple number of people recommendation. They called offices, they called various centers, but they were unable to get the proper maid. So all of a sudden, one Saturday, I think on Saturday morning, all of a sudden the bell rings, and Mrs. Mukherjee, she opens the door and she finds a young girl, I think early 20s. She is standing outside with a nice smile, and I wouldn't say she was very attractive. What my maid told me, she was. ये story revolves around the Mukherjee खानदान, Mukherjee family, and recently वो लोग एक साउथ कोलकाता में शिफ्ट हुए थे. And as I told you, so they were looking for a maid, and finding a maid in Calcutta, like Jeet set the context, काफी challenging है. So Mukherjee परिवार were in lookout of the maid, and both of them were working couple. So लोग ढूंढ रहे थे एक अच्छा maid हो जो घर संभाले, खाना बनाए. So they were in lookout of it. They were calling centers, काफी neighbors से बात कर रहे थे, but they were not able to find a perfect maid. So all of a sudden, since they spoke to a lot of multiple people and neighbors, and they were almost about to give up hope. But one Saturday, एक शनिवार सुबह, as they were Miss Mukherjee was about to, she finally gave up hope, or she was about to start cooking. Someone rings the bell, and as she opens the door, she finds a maid, a young girl of 20s, standing outside her house, and she introduces herself as Rajni. And a girl with a girl who doesn't talk much. She was quite reticent, soft, and she introduces herself as Rajni. And Mukherjee, as I said, she was just about to cook, and they had given up hope. And she says, "Acha Rajni, are you the new maid?" And Rajni smiles, and that's how she is welcomed in. And everyone is happy. Mr. Mukherjee, Mrs. Mukherjee, they both are pretty happy. They finally got a maid.
and Mr. Mukherjee says, finally, I think his office colleague finally got, because office colleague apparently of Mr. Mukherjee had promised that within 2 days they will send someone, and Mr. Mukherjee was quite rest assured that maybe his colleague has, it's his recommendation. So the day begins and they're very happy, and Rajni cooks a very delicious Bengali meal for the lunch. The Saturday and a delicious Bengali lunch was quite fitting. So day starts out pretty well. They both are happy, and Mr. Mukherjee makes some nice Saturday Sunday plans. But now they have the maid. Now the story takes a very very scary turn. So on the same day, the night, जब जब रात हुआ and Mr. Mukherjee, ये लोग बाहर गए थे. They're gone out with their friends and they come back home and they notice Rajni sleeping. Rajni सो रही थी, and so they are pretty rest assured that Rajni आ गई है and सो रही है, and they go and they retire to bed. अब अचानक से क्या होता है रात को करीबन 3 बजे मिसेस मुखर्जी जब पानी पीने के लिए किचन जाती है एंड नोटिस करती कि रजनी जो जहां पर लेटी हुई थी ना वहां है नहीं. बट आई वोंट से शी वाज अलार्म्ड. शी फील्स दैट मे बी रजनी वॉशरूम में गई हो. सो as Mrs. Mukherjee, she drinks the water. As she approaches, goes towards the washroom to check on Rajni, she notices that the washroom में तो कोई है नहीं. My God, ये बहुत ही डरावनी कहानी में. And as she is going back to the kitchen, ना, they have एक veranda है which is attached to the living room. Mrs. Mukherjee notices someone standing, Rajni standing from far. एकदम. तो obviously रजनी को जब देखे हुए है ना बैक फेसिंग टू मिसेस मुखर्जी, तो as she notices Rajni standing, तो she calls out to Rajni. But it is no reply. रजनी को रिप्लाई नहीं करती है. तो मिसेस मुखर्जी काफी देर तक रजनी को पुकारती है, but she doesn't reply. तो now मिसेस मुखर्जी gets slightly, she's obviously सिचुएशन समझ पा रहे हो आप. वो रात को चले, अरे कितना टाइम था? 3 बजे. रात को सुबह 3 बजे. हाँ, सुबह 3 बजे था. मतलब डेविल आवर. Yes. 3 AM को वो रात नहीं बोलूंगा मैं, दिन बोलूंगा. वो 3 बजे उठ के वो गई आपके बालकनी में. कलकत्ता के अक्सर बहुत सारे घर में ऐसे बालकनी होते हैं. उठोन बोलते उसको. उठोन, आई वुड से उठोन, बिकॉज़ उठोन ग्राउंड फ्लोर में होता है. ये बालकनी था. हाँ, बालकनी. इट वाज ऑन द टॉप फ्लोर. तो वो गई बालकनी में और देखी कि यार वो खड़ी है उस तरफ, और उस तरफ मुड़ के खड़ी है. तो आपको समझ में आ रही है ये सिचुएशन कितनी स्कैरी है कि उस तरफ देख रही है और यहाँ से आवाज दे रही है, वो सुन नहीं रही. उसके बाद क्या हुआ? तो ऑब्वियसली मिसेस मुखर्जी तो काफी लाइक थोड़ा शी वाज टेकन अबैक. तो जब वो काफी बार रजनी का नाम कह के पुकारी, रजनी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो मिसेस मुखर्जी वेंट टुवर्ड्स हर एंड पैटेड हर. Rajni suddenly turns and she has a very dead expression on her face and she looks into Mrs. Mukherjee's eyes. My God, मैं तो I can visualize it. मुझे तो अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मेरे भी काफी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ. एंड रजनी पता नहीं कुछ समय क्या हुआ, रजनी तो कुछ रेस्पॉन्स दे कुछ नहीं. With a dead expression, she was looking into Mrs. Mukherjee's eyes, and Mrs. Mukherjee एकदम she was totally clueless. अभी क्या करे? तो she gets a little scared. तो डर के मारे जाके अपना मिस्टर मुखर्जी अपना हस्बैंड को she wakes him up. And now when they come back, Rajni is missing. Rajni is back, and Rajni हमें सो रही है. तो अभी ये क्या हुआ? Maybe she was sleepwalking. That's what Mr. Mukherjee tries to calm her. Maybe she was sleepwalking. वो भी हो सकता है ना, because मतलब वो जब वापस गई देखने, वो बालकनी में थी नहीं. वो लोग ढूंढ के बाथरूम में थी नहीं. वो वापस उसी जगह सो गई थी, और जब उसको उठाया गया वो एकदम उनको याद ही नहीं था कि वैसे वो चल के गई, उनकी तरफ देखी, और वही है बहुत ही आश्चर्य का बात कि उसको याद ही नहीं था. So very debatable, that maybe she was sleepwalking. That's what Mr. Mukherjee came to a conclusion. ये एक डिडक्शन था. So उसके बाद next morning, like they forgot about the matter. Mrs. Mukherjee, they began to carry on with their day. आज भी संडे है. आज भी कुछ something creepy happened. Again, good lunch. Rajni was absolutely normal. Mr. Mukherjee were making plans. After all, they had the maid servant had finally arrived. आज रात को तो something और भी scary हुआ. Can you just tell us रात को क्या हुआ?
And इस बार believe you me, I'm not नहीं it's not made up or something. आज रात को 3 बजे and today by the way they came back. It was a Sunday. Mr. Mukherjee had gone to a club. They came back around 12:30 and 3 बजे फिर से क्या हुआ? तो ऐसा है नहीं कि वो लोग डरे हुए नहीं थे. जिसके घर में ऐसा हुआ है शनिवार को, वो लोग दोनों डरे हुए थे, पर उन्होंने सोचा कि हो सके वो स्लीप वॉक करिए, नींद में चल रही है, उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं. और उन्होंने अभी अभी कैलकाटा में उन लोग ने उस घर में उन लोग ने शिफ्ट किया था, उन लोग के पास बाकी सब काम था. तो संडे को लोग पार्टी करने गए, वापस आके देखे फिर भी रजनी सो रही है और उस रात वो लोग सोने गए. उस रात को वापस 3 बजे इस बार उस औरत की नींद ऐसे ही खुल गई. ऑब्वियसली उनका एक डर था तो वो खुल गई. वो वापस गई देखने वो लड़की कहाँ थी. वो अपनी जगह में फिर भी नहीं थी. इस बार उनके हस्बैंड उनके साथ थे. वो कही कि इस बार मैं जो देखने वाली हूँ तुम भी मेरे साथ देखोगे, मैं इस बार अकेले नहीं जाने वाली हूँ. दोनों रात को उठे, वही 3 बजे उठ के लोग जाके देखी वो लड़की कहाँ थी. जब देखी कि वो लड़की वहां नहीं थी, वो लोग ढूंढने लगे. इस बार वो लोग डायरेक्टली बालकनी गए, पर इस बार उन लोग ने जो देखा मैं क्या बताऊं आपको. रजनी इस बार बालकनी में खड़ी थी, उसके हाथ में एक चाकू था और चाकू ऐसे करके उनकी तरफ वो पॉइंट करके खड़ी थी. And she was not blinking. By the way. शी वॉज नॉट ब्लिंकिंग. हाँ, उनके डेड स्टेयर उनके तरफ देख रही थी. वो लोग दोनों डर गए. वो लोग दोनों डर के उसके ऊपर चिल्लाने लगे, डांटने लगे कि रजनी क्या हो रही है, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, चाकू के साथ क्या कर रही हो. पर रजनी उनकी तरफ देखने लगी, सिर्फ डेड स्टेयर देख रही थी. वो लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, आगे बढ़ेंगे तो यार हो सके उनको चोट पहुंचे. पर कुछ 1-2 मिनट के बाद रजनी ऐसा चाकू को जमीन में गिराया, उनके ओर भागने लगी और उनको पार के दरवाजे से निकल के चली गई. तब उनको लगा कि हो सके ये चोर है, हो सके ये एक ढोंग है, हो सके ये चोरी करने के लिए उठी थी, हो सके वो एक्टिंग करी थी. और वो रात दोनों हस्बैंड वाइफ कोई सो नहीं पाए. It's very debatable. ना? Yeah. जैसे लोग काफी स्लीप वॉकिंग, अगर जो लोग स्लीप वॉकिंग से दे आर क्वाइट लाइक सफरिंग फ्रॉम स्लीप वॉकिंग issues, they also might do something like this. But even now they were quite perplexed and confused that ये क्या है. रजनी मतलब is she possessed or there's some kind of mental health issues, God knows. एग्जैक्टली. तो उसके बाद अगले दिन कोई सो नहीं पाया. तो वो कल अगले दिन सुबह उसकी जो दोस्त थी ना, उनकी जो सहेली थी, उनको उन्होंने फोन किया कि अच्छा तुमने वो मेड दिया था, वो मेड तो ऐसे भाग गई. तो कह रही है सहेली, कह रही है कौन सी मेड, मैंने तो किसी को भेजा नहीं. तब और वो डर गई, अगर किसी ने भेजा नहीं तो ये लड़की कहां से आई थी, ये लड़की थी कौन. तो ये समय तो लड़की वो बहुत घबरा गई, वो टूट के गिर गई कि यार ये क्या हो रहा है, हमने अभी अभी शिफ्ट किया, ये लड़की कौन है. हस्बैंड को काम पे जाना था तो उनके हस्बैंड बोले यार देखो मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, घर के बाहर निकलना मत, और मैं किसी से बात करके आ रहा हूँ. उस दिन वो पूरा घर में अकेली थी. पूरा सुबह वो डर डर के जा रही थी. इमेजिन जिसके घर के रात में ये हुआ होगा उसके साथ क्या बीत रही होगी. पूरा सुबह वो घूमने लगी, घर में अकेली थी. उनको लग रहा था यहाँ वहां से आवाज आ रहा है. वो किचन में गई क्लीन करने, जहां वो सो रही थी, वो लड़की सोती थी, वहां से आवाज आने लगा. This was a very uncomfortable presence. बहुत ही अनकंफर्टेबल प्रेजेंस था. लग रहा था कि तो आपको मैसेज होता है कि कमरे में कोई है कि नहीं, वो आप भी जानते. एक ऑरा आपको समझ में आती है. अगर कुछ अगर यहाँ पर कुछ भूत प्रेत का कुछ, इफ यू हैव एन पैरानॉर्मल प्रेजेंस, यू कैन रियली अंडरस्टैंड. एंड सिंस मिसेस मुखर्जी ने एक्सपीरियंस किया था तो उसको और भी वो महसूस हो रहा था कि ऐसा कुछ है घर में. बिल्कुल. तो ऐसे करके आवाज वो सुनने लगी. कभी ड्राइंग रूम से आवाज आ रहा है, कभी बेडरूम से आवाज आ रहा है, कोई किचन से गिर रहा है. तो उसने क्विकली अपने हस्बैंड को फोन करके बोला देखो यार आप किसी को जल्दी बुलाओ. हस्बैंड तब एक तांत्रिक नहीं बोलूंगा, एक साधु को लेके आए जो घर में पूजा करते ये करते, उनको वो लेके आए. तब उन्होंने कहा कि इस घर में किसी का देहांत हुआ था, किसने जहर खा के मरी थी, बहुत उदास थी, और उस लड़की का नाम है रजनी. तब उन्होंने पूजा किया. उसके घर में लोग कहते हैं ना पूजा करने कितना इंपॉर्टेंट है. जितना आलिशान घर हो, जितना पुराना घर हो, नया घर हो, हमेशा घर में एक गृह प्रवेश या पूजा करना चाहिए. बिकॉज आपको पता नहीं उसकी एनर्जीज कैसे. आफ्टर ऑल दीज आर ऑल एनर्जीज. But I have a theory, Okay. which I had discussed with the maid, which even the maid had agreed. Let me tell you this theory, and I want all of you to comment if you agree with my theory or if you have another theory in mind. So ऐसा भी हो सकता है that Rajni was not a ghost. She was not possessed. She had some mental issues, or she had come and she wanted to rob the house. She wanted to scare them. Rajni was not possessed. But why at 3 a.m.? She should never call them. She used to get up on her own. Right? Just listen to my theory.
maybe this Baba, and this is a very old story. This time there was no cell phone. Yeah, of course. इसलिए Mr. Mukherjee didn't phone or ping message the colleague because Saturday Sunday था, maybe thought Monday जाके पूछते. This happened in around 92, 93. Yeah, then cell phones were still very premium. So मेरा theory ये है कि maybe Rajni was not possessed. There was no encounter. There was no paranormal presence, and this Baba was a ढोंगी Baba. Just to convince that ये रजनी थी करके पैसा लेके पूजा करके निकल गया. Maybe this Rajni was some kind of mental, she had some kind of vested interest, and she had come because कहाँ से पता चला था. Maybe they need a maid servant because the activity which I heard was not a very ghost or very paranormal activity. Someone dropping the knife and moving out, because a ghost is sometimes very omnipresent also. वो ऐसा एक हर रात को बालकनी के सामने खड़ा होके, maybe she was making them scared. She had some vested interest, or maybe she wanted to get hold of the house or something. That's a debatable. And ये ढोंगी बाबा वो तो ढोंगी बाबा जाके पूजा पाठ करके बोला हाँ ये रजनी है या भूत था, पैसा लेके निकल गया. And everything else was psychology. So that's my theory. Even the maid servant who had told me also agreed. बाकी आप लोग बताओ, ये कहानी सुन के जो आप लोग कमेंट करके देखो जो कौन सा थ्योरी पसंद आया हो. Maybe you guys have a better theory. That's it. मुझे तो फिर भी लगता है ये एक सुपरनैचुरल कहानी थी. बिकॉज एक औरत 3 बजे डेविल्स आवर को उठ के बैल्कनी में जाना बिना किसी डिस्टर्ब, अगर उसको चोरी करना था वो कमरे में करती, आवाज करती. पर ये 3 बजे, और वो जो मालकिन थी जो मिसेस मुखर्जी, वो भी 3 बजे उठ रही थी. कभी कभी ऐसा होता है ना, 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है, कोई ऐसा वाइब होता है कमरे में, कोई ऐसा फीलिंग और एनर्जी रहती है. तो मुझे तो अभी भी बिलीव होता है ये सुपरनैचुरल कहानी थी. बिकॉज अगर चोरी करना था तो कुछ ना कुछ घर से वो गायब होता. घर से कुछ गायब. या आई विल लेट यू डिसाइड आपको ये कहानी कैसी लगी. आप प्लीज बताइएगा अगर आप कलकत्ता से हो और आपको ऐसी कोई कहानी है. बिकॉज ये जो हमारे घर में हाउस हेल्प होते हैं ना, उनके पास ऐसे बहुत कहानी होती है. अगर आप भी ऐसी कोई कहानी सुनी हो और आपको अच्छी लगती हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच दीप. Thank you. आप आए और आपके जो एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया. आप देखते रहिए चिलपिल और मुझे बताइए कैसा लगा आपको. Please don't forget to follow, subscribe, and Share. share and hit the bell button for more such chilly stories. And take a chill pill. Yes.